Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Good morning. Today is a new morning and with it comes a new class assignment. So let's read our chapter. We were reading Population Explosion in Pakistan. First of all, we have paragraph 6. Proper measures and decisions should be taken to ensure increase in our literacy rate. اب ہمارے ملک میں جو ہے وہ لٹریسی ریٹ یعنی کہ شرح خواندگی بڑھانے کے لیے مناسب اقدامات پراپر میجرز مناسب اقدامات اینڈ ڈیسیجنز اور فیصلے کرنا ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں اس کی انکریز کی کہ ہم نے اس کو انکریز کرنا ہے تو مطلب رائز یا گروتھ نرچر کرنا ہے. In 2016 and 17, 13.7% of children aged 10 to 17 were trapped in child labor, as reported by the International Labour Organization. اگر 2016 سے 17 میں کی بات کریں تو اس میں 10 سے 17 سال کی عمر کے 13.7 یعنی 13.7% بچے جو ہے وہ چائلڈ لیبر میں پھنسے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اس میں ان کو ٹریپ کیا گیا تھا. ایز رپورٹڈ بائی دا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن, جیسا کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ میں بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ٹریپڈ کیا ہوتا ہے؟ لائک ہم کہہ سکتے کہ انسنیئرڈ, کاٹ. ٹھیک ہے. ان کو فورسفلی جو ہے وہ رہنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. اور رپورٹڈ, اسٹیٹڈ, مینشنڈ, اناؤنسڈ. ٹھیک ہے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ مینشن کیا اپنی رپورٹس میں. What's more alarming is that 5.4% of these children were engaged in hazardous work which endangered their lives and futures. اور what's more alarming, زیادہ تشویشناک بات کیا ہے کہ 5.4% of these children, ان بچوں میں سے 5.4% بچے جو ہے وہ hazardous work یعنی کہ کوئی خطرناک کاموں میں انگیج تھے, مصروف تھے. ٹھیک ہے نا, جنہوں نے ان کی زندگی اور ان کے مستقبل کو بھی خطرے سے دوچار کیا ہوا تھا. اب ہیزرڈس کیا ہوتا ہے؟ ڈینجرس, رسکی. ٹھیک ہے. اور الارمنگ ورڈ آیا ہے مطلب ڈسٹربنگ, فرائٹننگ. تو کیا چیز زیادہ تشویشناک تھی کہ ان میں سے جو 5.4% بچے تھے وہ خطرناک کاموں میں مصروف تھے جو ان کی زندگی اور مستقبل کے لیے خطرہ تھا. This exploitation is not just a tragedy for the children. یہ جو استحصال تھا, ایکسپلائٹیشن تھی, ابیوز تھا, مس یوز تھا, وہ نہ صرف ان بچوں کے لیے سانحہ تھا, ٹریجڈی سانحہ. ٹھیک ہے. ڈیزاسٹر نہ صرف ان بچوں کے لیے سانحہ تھا, اٹس اے ٹکنگ ٹائم بام فار دا کنٹریز ورک فورس, بلکہ یہ جو ملک کی مزدور قوت ہے اس کے لیے بھی ایک ٹائم بام کی طرح تھا. ٹائم بام کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک لومنگ ڈینجر ہے. ٹھیک ہے. ایک امپینڈنگ کرائسس ہے. تو یہ نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ پوری جو مزدور طبقہ ہے یا قوت ہے ان کے لیے خطرے کا باعث تھا. سیٹنگ دا اسٹیج فار جنریشن آف illiterate and unskilled laborers. اور یہ کیا کرتی ہے؟ سیٹنگ دا اسٹیج فار جنریشن آف, یہ ناخواندہ اور غیر ہنرمند نسل کو جنم دیتی ہے. سیٹنگ دا اسٹیج جنم دیتی ہے, پروڈیوس کرتی ہے فار اے جنریشن, ایک ایسی نسل کو جو illiterate بھی ہے اور unskilled بھی ہے. ٹھیک ہے. جس میں انسکلڈ اور illiterate لیبررز ہیں, جس میں ناخواندہ, غیر پڑھے لکھے, ان پڑھ اور غیر ہنرمند جو ہے وہ لوگ موجود ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں the United Nations Children's Fund sheds light on an even darker reality. کہتے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشنز کے چلڈرن فنڈز ہیں انہوں نے اس سے بھی زیادہ ایک بلیک اور ڈارک پکچر دکھائی ہے, ایک تاریک حقیقت کی نشاندہی کی ہے. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں کہ 22.8 ملین چلڈرن بٹوین دا ایجز آف 5 and 16 are out of school in پاکستان. کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 5 سے 16 سال کی عمر کے 2.28 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. ٹھیک ہے. It's alarming, obviously it's risky. Instead of being in classrooms, these kids are toiling away in car mechanic shops, selling vegetables on street corners or begging for their next meal. بجائے اس کے کہ یہ بچے سکول میں ہوتے یا کلاس رومز میں ہوتے, کمرہ جماعت میں ہوتے, یہ بچے مکینک کی دکانوں میں کام کر رہے ہیں, سڑکوں پہ سبزیاں بیچ رہے ہیں, یا اگلے کھانے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں.
उसके बाद वो कहते हैं दिस डायर सिचुएशन इज अलार्मिंग एंड नीड्स टू बी एड्रेस्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस टू एजुकेट एंड अवेयर चिल्ड्रन ऑफ द इम्पोर्टेंट एजुकेशन। वो कहते हैं ये तशवीशनाक सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है और इसे फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों को तालीम की अहमियत से आगाह किया जा सके, सो दैट वी कैन अवेयर चिल्ड्रन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स आए हैं, जैसे शेड लाइट का वर्ड हमारे पास आया है, लाइक रिवील करना, हाईलाइट करना, प्रोमिनेंट करना, कोई चीज सरफेस पे लेकर आना। उसके बाद डार्कर रियलिटी हमारे पास वर्ड आया है, हार्श ट्रूथ हम कहते हैं, ब्लीक फैक्ट कहते हैं, डार्क फैक्ट कहते हैं हम। टॉयलिंग अवे हमारे पास वर्ड आया है, हम कह सकते हैं स्ट्रगलिंग, लेबरिंग। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास एक वर्ड डायर सिचुएशन का, तो क्रिटिकल कंडीशन वी कैन से, ठीक है, डेस्परेट स्टेट हम कह सकते हैं। The unchecked population growth coupled with inadequate planning spells disasters for a country already strained by scarce resources, a rising debt burden, poor growth, and development scenarios. क्या कहते हैं? द अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जो बेकाबू आबादी का इजाफा है, ठीक है, कपल्ड विद, ये मिल जाती है किसके साथ? इनएडिकेट प्लानिंग, ये जो नाकाफी मनसूबा बंदी होती है, जो इनफ नहीं होती है, ठीक है, टू मीट द वेरी एंड्स। तो ये जो बेकाबू आबादी का इजाफा है और उसके साथ ही नाकाफी मनसूबा बंदी है, स्पेल्स डिजास्टर, ये क्या करते हैं? तबाही का बायस बनते हैं। ठीक है, फॉर अ कंट्री, एक ऐसे मुल्क के लिए ऑलरेडी स्ट्रेन्ड, जो पहले ही हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी जो है वो हम कहते हैं कि स्ट्रेन्ड है, ऑलरेडी जो है वो हम कह सकते हैं ओवरबर्डन्ड है, ठीक है, प्रेशर्ड है। तो एक ऐसा मुल्क जिसमें पहले ही इतना बोझ है किस चीज का? स्कार्स रिसोर्सेस, महदूद वसाइल का। स्कार्स क्या होता है? कम, लिमिटेड, ठीक है, रेयर रिसोर्सेज, वसाइल। उसके बाद राइजिंग डेट बर्डन, उसके बाद इतना भारी जो है वो कर्ज का शिकार है, ठीक है, कर्जा है इस पर। उसके बाद पुअर ग्रोथ, कमजोर तरक्की है इसमें, एंड डेवलपमेंट सिनेरियो, जो तरक्याती मसाइल हैं। तो एक ऐसा मुल्क जिसमें ऑलरेडी महदूद वसाइल हैं, या बढ़ते हुए कर्जे हैं, या कमजोर तरक्की की सूरत हाल है, या तरक्याती मसाइल हैं, उसमें बेकाबू आबादी, इस तरह से आबादी का अचानक बढ़ जाना और नाकाफी मनसूबाबंदी जो है वो तबाही का बायस बनते हैं। ठीक है, दिस precarious situation heightens disappointment and fuels hatred. अब ये जो प्रिकेरियस सिचुएशन है, ये जो एक हम कह सकते हैं कि प्रिकेरियस की नॉट स्ट्रॉन्ग, अनस्टेबल, रिस्की, ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है, ये किसकी तरफ हाइटन्स क्या करती है? ये इंटेंसिफाई करती है, इंक्रीज करती है, बढ़ाती है डिसपॉइंटमेंट को, मायूसी को, ठीक है, एंड फ्यूज और हवा देती है हेट्रेड, नफरत को, और मुल्क में नफरत को ये हवा देती है और साथ ही साथ मायूसी में इजाफा करती है। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू में कुछ वर्ड आए थे, अनचेक्ड आया था, जैसे अनकंट्रोल्ड, ठीक है, कपल्ड विद आया था, अलोंग विद, कंबाइंड विद, साथ मिल जाना। इनएडिक्वेट का वर्ड आया, इनसफिशिएंट, ठीक है, इनसफिशिएंट होता है, लैकिंग होता है, हम कहते हैं नॉट इनफ। स्पेल्स वर्ड आया है, इंडिकेट्स, सजेस्ट्स। डिजास्टर का वर्ड आया है, क्लैमिटी के सेंस में हम लेते हैं, या डिस्ट्रक्शन की सेंस में हम लेते हैं, ठीक है ना, डिवास्टेशन की सेंस में हम लेते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स थे इसमें। The role of media can help a lot in bringing awareness among masses. वो कहते हैं मीडिया का किरदार अवाम में शऊर बेदार करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। मैसेज क्या है? पब्लिक, पीपल, अवाम। अवेयरनेस क्या है? अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एजुकेशन, कॉन्शियसनेस। With most of the population of illiterate people, electronic media can prove to be a huge success in getting the message across. वो कहते हैं कि इतनी आबादी, इतनी बड़ी नाखानदा अफराद पर मुश्तमिल आबादी है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पैगाम पहुंचाने में बहुत कामयाबी हासिल कर सकता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली क्रॉस का क्या मतलब है? अराउंड द कम्युनिटी, क्रॉस द ग्लोब, ठीक है, इर्द गिर्द। और उसके बाद हम कहते हैं प्रिंट मीडिया टू नीड्स टू एम्फसाइज द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन अ मोर रेगुलर बेसिस। जो प्रिंट मीडिया है उसको भी चाहिए कि वो आबादी के इजाफे के मसले को बाकायदगी से उजागर करे। अब हमारे पास क्या वर्ड है? एम्फसाइज करना, जोर देना, स्ट्रेस करना, ठीक है, हाईलाइट करना। तो उसको जो है वो बाकायदगी से उजागर करे, उस पर जोर दे, उस पर बात करे। ठीक है,
According to a report by Population Action International Washington, कहते हैं कि Population Action International Washington एक इदारा है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक a great reason for population increase in Pakistan is that the government has made a very insignificant investment in social sector. कि गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की हुकूमत, उसने समाजी शोबे में बहुत कम सरमायाकारी की है, ठीक है. इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन. ये बहुत ही अहम मसला है, संगीन मसला है, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन मायूसी की तरफ ले जाता है, विच मीन्स के जिसका सिर्फ मतलब बदनज़मी, इंतशार, डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन है. क्या उस मीन्स डेंजर टू स्टेट. उसका मतलब क्या है? बदनज़मी का मतलब है रियासत के लिए खतरा, ठीक है. अब यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन का वर्ड आया इरिटेशन, ठीक है, डिसकंटेंट हो जाना. क्या उसका वर्ड आया है डिसऑर्डर, डिवस्ट्रेशन, डिस्ट्रक्शन का वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं. इनसिग्निफिकेंट का वर्ड आया नेग्लिजिबल, माइनर, ठीक है. सेक्टर का वर्ड आया है डिवीजन, एरिया, कम्युनिटी. उसके बाद वो कहते हैं द प्रॉब्लम मस्ट बी टैकल्ड प्रैग्मेटिकली. इस मसले को प्रैग्मेटिकली हल करना चाहिए. रियलिटी विद फैक्ट्स लॉजिकली, ठीक है, हकीकत पसंदी से हल करना होगा. अदरवाइज आवर ड्रीम ऑफ अ ब्राइट एंड ग्लोरियस फ्यूचर विल जस्ट रिमेन अ विश. वरना फिर हमारा जो रोशन और शानदार मुस्तकबिल का ख्वाब है वो महज ख्वाहिश बनकर रह जाएगा, ठीक है. अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान शुड बी आवर टॉप प्रायोरिटी. एक मजबूत पाकिस्तान हमारे लिए एक अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए. एंड इफ वी हैव टू मेक सर्टेन हार्ड डिसीजंस, और अगर हमें कुछ इसके लिए हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़े, हार्ड डिसीजंस मतलब कि ऐसे फैसले जो हम नहीं लेना चाह रहे हो, जो हमारे लिए मुश्किल हो फॉर द टाइम बीइंग, कुछ सख्त फैसले भी करने पड़े, तो हम वो नो वन शुड हेजिटेट टू कोऑपरेट, ठीक है. ऐसे फैसले जो है वो भी लेने चाहिए जिनमें कोई भी हमारे साथ ताउन करने पे जो है वो तैयार ना हो, तो हमें जो है वो फैसले भी लेने चाहिए. एंड नो वन शुड हेजिटेट टू कोऑपरेट. और किसी को भी बजाय इसके कि हम बाहर से ताउन की उम्मीद रखें, किसी को भी इसमें ताउन करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए. हेजिटेट क्या है? हिचकिचाना नहीं चाहिए, ठीक है. पाकिस्तान कम्स फर्स्ट इवन बिफोर आवर पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट. पाकिस्तान हमारे ज़ाती मफादात से भी पहले आता है. अब यहाँ पे ऊपर वर्ड आए टैकल्ड का, ठीक है. टैकल क्या है हमारे पास? हैंडल्ड, एड्रेस्ड, ठीक है. उसके बाद हमारे पास वर्ड आया है प्रैग्मेटिकली. प्रैग्मेटिकली मैंने बताया है रियलिस्टिकली, सेंसिबली, ठीक है, लॉजिकली, ग्लोरियस, ऑनरेबल, ठीक है. मैग्निफिसेंट का वर्ड हम यूज करते हैं. उसके बाद हेजिटेट, हिचकिचाना, पॉज, इवन कि पॉज भी हमें नहीं लेना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, इस पर पॉन्डर नहीं करना चाहिए. और वेस्टेड क्या है? स्टैब्लिश्ड, सिक्योर्ड, कि अपने मफादात सिक्योर करने से पहले हमें पाकिस्तान के लिए कुछ सोचना चाहिए, ठीक है. पाकिस्तान स्टैंड्स एट अ क्रॉस रोड्स. पाकिस्तान जो है ना वो बड़े नाजुक मोड़ पर जो है वो खड़ा है. क्रॉस रोड क्या होता है? टर्निंग पॉइंट होता है. तो पाकिस्तान बड़े एक नाजुक मोड़ पर इस टाइम खड़ा है. द फ्यूचर ऑफ द नेशन डिपेंड्स ऑन इट. जो मुकाम का मुस्तकबिल है वो इसी पर इन्हिसार कर रहा है फॉर द टाइम बीइंग. एड्रेसिंग दीज मल्टीफेसेटेड चैलेंजेस इज नॉट जस्ट एन ऑप्शन. इन कहते हैं कि ये जो मल्टीफेसेटेड हम डिफरेंट हमारे पास चैलेंजेस हैं, लाइक कम्प्लेक्स, ये जो पेचीदा किस्म के हमारे पास मसले हैं, इनसे निपटना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक इख्तियार नहीं है, इट्स अ नेसेसिटी. अभी एक लाजमी ज़रूरत बन चुका है. टास्क ये है आज का कि वीडियो में जो भी आपके सिनोनिम्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, आप उनको रिवाइज करेंगे और आप अपने क्लास ग्रुप में जो है उनको डिस्कस करेंगे और आप उनको सुना सकते हैं. या अगर आपको जो है बहुत बहुत बेहतर तो होगा कि आप उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें, ताकि आपको जो है ना वो हम इस चीज़ से हट के भी थोड़ा अपनी ग्रोथ की तरफ तवज्जो दें कि हमने आगे टेस्ट भी देने हैं डिफरेंट, तो हमारी वोकैब जो है ना एटलीस्ट ये थोड़ी प्रॉपर एक लेवल पे होनी चाहिए.